Hello and welcome back, students. It is a video lecture on the course syllabus of Gondwana University, Masters in Computer Science, first year, semester 2, Web Technologies. We are learning PHP and today's topic is reading data in web pages. To read data into a web pages, we require a form element and all the other elements like text areas, checkboxes, radio button, list boxes are covered inside this form element. It has to be inside this form element. So basically, if you want to connect to PHP on the server or any code on the server, or if you want to set up web pages in a particular way, you need to do this. Also, to enclose all HTML controls in an HTML form and have to indicate in that form where the data in those controls will be sent. For example, if you are using a text field, and then you have to let the browser know that where the name inside the text field will be sent when the user clicks the submit button. And also here, as you can see, I have written form method equals to get. So it is compulsory to specify the method which the data will be sent. The two most common methods are get and post method. For now I am writing get method here. Also remember, suppose you are creating a submit button, so it has to be anything, not only the submit button, but any control like text area, radio button, etc. All your controls has to be inside the form element. With if I talk about that submit button also, the caption on that submit button will be send and the type attribute will be submit. So it understands कि मुझे ऐसे work करना है, मेरा type submit है, means I am used for submission. It's a type of an input element. Now we are going to discuss how to handle the text field. So we have put together a web page HTML that has a text field and a submit button in a form. Now I will be showing you one of the examples here. See, this is the HTML code. HTML head. Inside the title tag we have written entering data into text field, title tag close. Then the head tag close and the body tag begin. Inside the body tag you have your heading tag, that is your H1 tag. You know what is H1 tag, it's the biggest heading tag. Entering data into text field and then the heading tag is closed. फॉर्म का मेथड मेंशन किया आपने गेट और उसका एक्शन मेंशन किया है आपने text field dot php. दैट मीन्स ये फॉर्म गेट मेथड पे वर्क कर रहा है और एक्शन वो टेक्स्ट फील्ड डॉट php ले रहा है. बट वेयर इज टेक्स्ट फील्ड डॉट php? यू हैवंट क्रिएटेड टेक्स्ट फील्ड डॉट php up till now, but we will do it, no doubt. Okay, inside the form tag एक name, एक email id. तो input name equals to name, टाइप टेक्स्ट. जब आपने लिख दिया है ना टाइप टेक्स्ट यहाँ पे, तो वो टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर देगा. तो टाइप इज इम्पोर्टेंट. टाइप एट्रीब्यूट से वो एलिमेंट कैसा बनेगा ये डिसाइड होता है. तो जैसे कि पहला वाला जो है उस पे नेम इक्वल्स टू नेम लिखा है. दैट मीन्स उस कंट्रोल का नाम नेम है, उसका कैप्शन नाम नहीं है. और वैसे भी क्योंकि ये टेक्स्ट फील्ड है, ये इनिशियली ब्लैंक रहेगा, ये तो यूजर डिसाइड करेगा ना कि उस टेक्स्ट फील्ड में क्या एंटर करना है. तो उसका नेम एट्रीब्यूट अभी नेम रख दिया. मतलब जब भी आपको कोडिंग में उस कंट्रोल को कॉल करना होगा तो आप उसको किस नाम से बुलाओगे? नेम नाम से बुलाओगे. और वो किस टाइप का है? वो टेक्स्ट बॉक्स टाइप का है. सो टेक्स्ट बॉक्स इज टेक्स्ट फील्ड. ठीक है. और ये जो आपने लिखा हुआ है ना, ये उस टेक्स्ट बॉक्स के सामने लिखा होगा, ये जो नेम, एंड देन द टेक्स्ट बॉक्स विल बी क्रिएटेड, टेक्स्ट फील्ड विल बी क्रिएटेड समहाउ लाइक दिस. ऐसा नेम लिखा रहेगा, कोलन रहेगा और एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट हो जाएगी जो इनिशियली ब्लैंक रहेगी. और इस टेक्स्ट फील्ड का नाम रहेगा नेम. तो जब आप कोडिंग करोगे, इसमें कुछ एंटर करना है, तो आप उसको नेम से कॉल करोगे. नेक्स्ट है ईमेल आईडी. सिमिलरली ऐसा यहाँ पे ईमेल आईडी लिखा होगा, उसका भी नाम ईमेल आईडी होगा. वो भी एक टेक्स्ट फील्ड होता है, बट उसका डिफरेंस ये होता है कि जब यूज़र इसमें कुछ एंटर करता है तो वो ईमेल आईडी हो जाता है. अच्छा, इनपुट टाइप सबमिट. ठीक है. तो एक सबमिट टाइप का कुछ बन रहा है. वैल्यू इज सेंड, उसकी वैल्यू है. वैल्यू मतलब उसका डिस्प्ले. तो एक बटन बनेगी. सबमिट मतलब बटन होती है. ठीक है. और आपने कभी ना कभी, यू आर इन योर मास्टर्स डिग्री, तो आपने कभी ना कभी VB.NET एक्सेट्रा किया है. इट्स नॉट अ न्यू थिंग फॉर यू कि व्हाट आर बटन्स एंड व्हाट आर टेक्स्ट बॉक्सेस. बट ये है बटन, ये आपको पता है. और
अदरवाइज ऑल्सो बीइंग इनटू दिस फील्ड आपने फॉर्म्स यूज़ किए होंगे, एज अ यूज़र ही किए होंगे, लेकिन किए होंगे। तो ये बटन बनती है, सबमिट की हमेशा बटन ही बनती है जो क्लिकेबल रहती है ऑब्वियसली। तो ये सबमिट है, उसकी वैल्यू लेकिन सबमिट नहीं है, उसकी वैल्यू क्या है, सेंड। तो मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, उसकी वैल्यू सेंड है, मतलब इसके ऊपर सेंड लिखा रहेगा, ठीक है। वैल्यू मीन्स वॉट एवर इज डिस्प्लेड। फाइनली द फॉर्म टैग इज क्लोज, बॉडी टैग इज क्लोज एंड HTML टैग इज क्लोज। अब उसका PHP कोड देखते हैं, और ये PHP कोड क्या है, ये टेक्स्ट फील्ड डॉट PHP है। तो ये PHP हम अब रीड करने जा रहे हैं। तो PHP कोड के अंदर HTML हेड टाइटल, रीडिंग डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फील्ड, हेड क्लोज, बॉडी क्लोज, H1 PHP। अब यहाँ पे रीडिंग डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फील्ड, वेलकम। PHP code begins here. Your name is echo, request name echo break echo, and email ID is echo request email. What is this request? We haven't studied up till now, but it is a maybe a function or a method that we will see further. So in text field.php you can access the text in the text field name data as request data. So you can use this keyword request to access whatever you want to access. Okay, in text field.php you can access the text in that text field name data as request data. So the output of the above code will look like this. You haven't used the br tag नेम और ईमेल आईडी के बीच में, और सेंड ये एक बटन है, बट उसमें भी BR टैग्स लगाए हैं, तो सब कुछ एक लाइन में प्रिंट हो गया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट वाले का आउटपुट था, इसका आउटपुट था वो, बट अब इसका आउटपुट, इसमें ना ये रिक्वेस्ट हो रहा है, यहाँ से नेम आ रहा है, तो यहाँ पे प्रॉपर जो यूज़र डालेगा, जैसे यहाँ पे उसने usha.kosarkar@isoni.net इनपुट किया है फॉर्म पे यूज़र ने, आप अपना नाम डालोगे ऑब्वियसली है। नेक्स्ट जो आपका कोड था उसमें आप लिख रहे थे योर नेम इज एंड ईमेल आईडी, और यहाँ पे आपने प्रॉपर BR टैग भी लगाया है। तो वो देखो, वेलकम, योर नेम इज दिस एंड योर ईमेल आईडी इज दिस। Okay, all this PHP script text field.php does is to echo the name the user entered into the data text field. Again you look at this code, आपने ना ये बनाया है पूरा, इसके बाद ये जो कोड है ये जब एग्जीक्यूट होगा ऑब्वियसली ये टाइटल पे ये लिख कर आएगा, फिर ये लिख कर आएगा, सॉरी हेडिंग में ये लिख कर आएगा, फॉर्म भी बनेगा, फॉर्म पे 3 एलिमेंट्स बनेंगे, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस, एक सबमिट बटन, दैट्स इट। आउटपुट तो इसका भी आएगा। फिर आपने यहाँ पे PHP कोड बनाया .php, ठीक है, तो इसमें भी आपने टाइटल लिखा, हेडिंग लिखा, सब कुछ लिखा, वो प्रिंट होगा। फिर आपने जब PHP कोड बिगिन किया इनसाइड द HTML कोड, वहाँ पे आपने लिखा योर नेम इज एको के साथ, तो एको क्या करता है, जो भी है एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है। फिर आपने वापस एको यूज़ किया विद अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, तो ये क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट करेगा किसको, नेम को, तो ये जो नेम है वो रिक्वेस्ट होके यहाँ आया, ईमेल आईडी रिक्वेस्ट होके यहाँ पे आई, तो दोनों चीज़ें जो यहाँ एंटर हुई है वो यहाँ डिस्प्ले होगी, ठीक है। प्लीज़ ट्राई एंड इफ़ यू हैव डाउट यू कैन ऑलवेज शेयर ऑन व्हाट्सएप एंड इन द कमेंट्स ऑल्सो, ठीक है। अब देखते हैं कि ये तो टेक्स्ट फील्ड की बात हुई, अब व्हाट इज अ टेक्स्ट एरिया। ऑब्वियस है टेक्स्ट फील्ड एक लाइन का होता है, टेक्स्ट एरिया मल्टीपल लाइंस में आप डेटा एंटर कर सकते हैं। तो टेक्स्ट फील्ड्स आर फाइन इफ यू वांट अ सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट, एक ही लाइन का टेक्स्ट एंटर करना है तो आप टेक्स्ट फील्ड को यूज करते हो, बट इफ यू वांट मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट यू हैव टू गो विद टेक्स्ट एरिया, मल्टीपल लाइन इनपुट text area. So here we will be discussing an example .html that presents the user with a text area and asks what pizza toppings they want. So they have made an example जहाँ पे वो options रखेंगे और आप decide कर सकते हो कि कितने पिज़्ज़ा, कौन से पिज़्ज़ा toppings आपको चाहिए। The code goes like this. See, so HTML head, title, head close, body, start. ये normal HTML code है। HTML head title tag will be displayed on the title bar, जो भी टाइटल टैग के इनसाइड है, और फिर हेड टैग क्लोज हो जाता है। हेड बॉडी टैग हमेशा हेड टैग के बाहर ही बनता है,
बॉडी टैग में पहला चीज है हेडिंग टैग। H1 हेडिंग सबसे बड़ी हेडिंग होती है, तो इन बोल्ड लेटर्स, इन बिगर लेटर्स इट विल बी रिटन एंटरिंग डेटा इनटू टेक्स्ट एरियाज। अच्छा, फॉर्म का मेथड आपने पोस्ट मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। एक्शन है sanjay2.php, टेक्स्ट एरिया बना दिया, टेक्स्ट एरिया का नाम था डेटा, उसमें कॉलम्स 50 और रोज 5। ओके, तो ये इमेजिन करो कि 50 कॉलम्स रहेंगे और 5 रोज में आप डेटा एंटर कर सकते हो, इतना बड़ा टेक्स्ट एरिया आप बनवा रहे हो, ठीक है। और एक्शन में sanjay2.php कॉल होने वाला है, वो सेकेंडरी चीज़ है। अब आप यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर रहे हो जो आपने बनाया, वहाँ पे 4 इनपुट्स ले रहे हो आप। ब्रेक, इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू इज सेंड, मतलब सबमिट बटन तो बनेगी पर उस सबमिट बटन के ऊपर लिखा रहेगा सेंड। फॉर्म टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज, फाइनली द HTML टैग क्लोज। अब चलिए वो .php फाइल को भी चेक कर लेते हैं। अगेन उसमें HTML है, हेड के अंदर है टाइटल। टाइटल इज ऑलवेज रिटन इनसाइड द हेड टैग ओनली, ठीक है। These are very basic things and definitely you have studied it in your previous classes. तो टाइटल टैग में लिखा हुआ है रीडिंग डेटा फ्रॉम टेक्स्ट एरिया, फिर टाइटल टैग क्लोज, हेड टैग क्लोज एंड बॉडी टैग बिगिन। इनसाइड द बॉडी टैग अगेन इन H1 हेडिंग कुछ मेंशन किया हुआ है जो हेडिंग में लिखा होगा। एंड नाउ PHP कोड स्टार्ट। तो बेसिकली एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल है, उसमें आप रिक्वेस्ट डेटा को स्टोर कर रहे हो। तो रिक्वेस्ट डेटा जो भी आएगा वो टेक्स्ट में स्टोर हो जाएगा और जो भी डेटा आएगा उसको फाइनली एको से आप प्रिंट भी कर रहे हो। तो देखते हैं इसका आउटपुट स्क्रीन कैसा है। पहले तो पहला वाला जो पहला कोड था उसका आउटपुट क्या आएगा, ये टाइटल बार में रहेगा, ये हेडिंग में रहेगा, फिर ये एक टेक्स्ट एरिया बना रहेगा और एक बटन भी रहेगी। तो ये देख लीजिए आप, ऐसा है टाइटल बार में, तो इट्स नॉट विजिबल बट टाइटल बार में भी होगा, हेडिंग में होगा, टेक्स्ट एरिया विथ 4 वैल्यूज बिकॉज, और वहाँ पे ये रन टाइम पे यूज़र ने वैल्यूज एंटर किए, यहाँ नहीं। जब ये कोड एग्जीक्यूट हुआ होगा तो ये टेक्स्ट एरिया इनिशियली तो ब्लैंक रहा होगा, बट जब यूज़र ने इसमें डाला होगा तो उसने पेपरोनी, सॉसेज, पीचेस एंड लिकोराइस डाल दिया है। अब आपको डिसाइड करना है, सेंड पे क्लिक करना है और फिर देखना है कि क्या आउटपुट आता है। तो सेंड पे क्लिक करने के बाद एक्शन क्या हो रहा है, sanjay2.php कॉल हो रहा है, मतलब ये वाला PHP कोड कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो, इसमें कॉल होने के बाद ये हुआ रीडिंग डेटा फ्रॉम टेक्स्ट एरियाज, यू ऑर्डर्ड अ पिज्जा विद 1 2 3 4। कैसे आया भाई आउटपुट, चलो कोड में फिर से चलते हैं। कोड बोल रहा था रीडिंग डेटा फ्रॉम टेक्स्ट एरिया, हेडिंग में लिखा है रीडिंग डेटा फ्रॉम टेक्स्ट एरिया और वहीं पे लिखा था यू ऑर्डर्ड अ पिज्जा विथ ब्रेक टैग, और आपने जो डेटा था उसको रिक्वेस्ट करके टेक्स्ट में स्टोर किया और फिर एको कर दिया अपने टेक्स्ट को, तो वो स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट हो गया। सो सिंपल, ठीक है। अब नेक्स्ट है चेक बॉक्सेस। तो चेक बॉक्सेस वो होते हैं, ये नॉर्मली तब यूज़ होते हैं जब आपके ऑप्शंस मल्टीपल हो। इन केस अगर आपसे कोई आपका जेंडर पूछे तब आप डिज़ाइनिंग में चेक बॉक्सेस नहीं यूज़ कर सकते, तब आप क्या यूज़ करेंगे वो हम आगे देखेंगे। बट चेक बॉक्सेस आर मल्टीपल सिलेक्शंस के लिए होते हैं। और जैसे कि आपकी हॉबीज़, तो हॉबीज़ कभी एक नहीं होती है। तो अगर यूज़र ने, जो फॉर्म डिज़ाइनर है, उसने वहाँ पे 5 हॉबीज़ लिख के रखा हुआ है, तो डेफिनेटली आप एक से ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्टेड हो सकते हो। तो चेक बॉक्सेस अलाउ यू टू डू मल्टीपल सिलेक्शन, सारे भी कर सकते हो और चाहो तो एक भी सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस। ओके, द नेक्स्ट स्टेप अप इन कंट्रोल्स आर चेक बॉक्सेस, दो स्क्वायर कंट्रोल्स दैट यू कैन सिलेक्ट और डीसिलेक्ट विथ योर माउस। सो यू हैव यूज्ड इट, कंप्यूटर्स हम सब बहुत ज़्यादा एक्सेस करते हैं आजकल, तो इट्स नॉट अ न्यू थिंग, यू माइट हैव सीन इट इन मेनी प्लेसेस। ये है चेक बॉक्सेस जिनमें छोटे छोटे टिक्स होते हैं। सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू सिलेक्ट यू कैन सिलेक्ट, ठीक है। यू क्रिएट चेक बॉक्सेस विथ इनपुट एलिमेंट, दीज आर ऑल्सो अगेन अ टाइप ऑफ इनपुट, एक तरीके की यूजर इनपुट लेने का ही तरीका है ना हर चीज। अब जैसे हॉबीज चाहिए यूजर की, तो आपके पास 2 वे है। आप चाहे तो उसको बोलो कि मैनुअली आपका यूजर टेक्स्ट एरिया में इनपुट करता रहे बैठ के कि मेरी ये हॉबी है, वो हॉबी है, that is one way around. Another way is your form can have check boxes और जो भी possibilities है। जैसे आपने कॉलेज ओपन किया,
आपके कॉलेज में बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो आप सारे कोर्सेज का नाम मेंशन कर दो, उनके सामने चेक बॉक्सेस बना दो, और जो भी कोर्सेज आपके यूज़र को चाहिए वो उन पे टिक कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ टेकिंग इनपुट फ्रॉम योर यूजर, बट इन अ डिफरेंट स्टाइल विद द हेल्प ऑफ अ चेक बॉक्सेस, where you are asking the user if they want fries in if they want to enter something in your HTML page. Next, let's see the code. HTML हेड टाइटल टैग में लिखा हुआ है एंटर डेटा इनटू चेक बॉक्सेस। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, जो भी हम टाइटल टैग में लिखते हैं वो स्क्रीन के टाइटल बार पे डिस्प्ले होता है, ना कि वेब पेज के टाइटल बार पे, बट नॉट ऑन योर डिस्प्ले एरिया पे नहीं दिखता है। नेक्स्ट आता है बॉडी। तो बॉडी इज द मेन टैग, जो कुछ भी है वो, अगर आपका कुछ भी कोडिंग है तो वो हमेशा बॉडी टैग के इनसाइड ही होता है। ठीक है, अब इनसाइड द बॉडी टैग पहला टैग जो मेंशन किया हुआ है वो है H1 टैग। हेडिंग 1 टैग के अंदर क्या लिखा हुआ है, एंटरिंग डेटा इनटू चेक बॉक्सेस, हेडिंग 1 टैग क्लोज। बाय नाउ यू आर क्लियर व्हाट इज H1 टैग। फॉर्म का आपने मेथड यहाँ पे मेंशन किया, पोस्ट एक्शन है checkbox.php। नाउ डू यू वांट फ्राइज विद दैट, तो आपका आंसर यस होगा या नो होगा। ठीक है, तो इनपुट टाइप, उसके लिए आपने 2 चेक बॉक्सेस बनाए होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पे कि डू यू वांट फ्राइज विद दैट, इनपुट नेम चेक 1, टाइप इज चेक बॉक्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला अगर टाइप टेक्स्ट है तो वो टेक्स्ट बॉक्स बनाता है, अगर टाइप में आपने टेक्स्ट एरिया लिखा है तो वो टेक्स्ट एरिया बनाएगा। इन दैट केस आपको ना कॉल्स एंड रोज भी मेंशन करने पड़ते हैं, और अगर आपने टाइप चेक बॉक्स लिखा है तो चेक बॉक्स बनाएंगे। तो टाइप एट्रीब्यूट इन योर फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो डिसाइड करता है कि कौन सा कंट्रोल स्क्रीन पे आएगा। ठीक है, तो टाइप इज चेक बॉक्स। अब इनपुट नेम इक्वल्स टू चेक 1, ये चेक 1 क्या है, ये उसका नेम है। सो यू कैन नॉट से कि ये वहां लिखा होगा, ये स्क्रीन पे कहीं लिखा नहीं होता। नेम जो है, बाय दैट नेम वी कॉल, ओके। सो the check 1 will not be displayed there. Check 1 is the name of that control. We call the control by that name while we are coding. Okay, next is value is yes. Value is something that will be written on your screen. तो value equals to yes अगर है, मतलब वहां पे चेक बॉक्स बना रहेगा और चेक बॉक्स के आगे लिखा रहेगा yes, चेक बॉक्स के आगे लिखा रहेगा no। ठीक है, तो ये हो गया। वैल्यू 2 चेक बॉक्सेस बनाए हैं, इनपुट नेम इज चेक 1, टाइप इज चेक बॉक्स, वैल्यू इज नो। सो फर्स्ट वन इज यस, सेकंड वन इज नो। ब्रेक इनपुट टाइप सबमिट, एक सबमिट बटन रहेगी जिसकी वैल्यू रहेगी सेंड। वैल्यू इज समथिंग दैट विल बी रिटन ऑन योर स्क्रीन। सॉरी, ये विजिबल नहीं था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं checkbox.php की, जो सेंड बटन पे क्लिक होने पे जो कॉल होने वाला है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा PHP कोड। HTML हेड टाइटल, रीडिंग डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फील्ड, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट। दिस इज अ वेरी टिपिकल फॉर्म ऑफ योर HTML प्रोग्राम एंड आई थिंक सो बाय नाउ यू नो HTML, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ। बट HTML हेड जब क्लोज होता है तभी बॉडी स्टार्ट होता है, और टाइटल टैग जो होता है वो हमेशा हेड के अंदर होता है। अब बॉडी में हेडिंग 1 टैग में आपने कुछ लिखा हुआ है कि रीडिंग डेटा फ्रॉम चेक बॉक्सेस, और अब लिख कर आएगा यू सिलेक्टेड, बट व्हाट डिड आई सिलेक्ट, ये कैसे पता चलेगा। अब ये देखो, रिक्वेस्ट का यूज करके चेक 1 से डेटा लाओ, और अगर वो सेट है तो एको कर दो कि रिक्वेस्ट चेक 1 ब्रेक। एल्स चेक 1 अगर सिलेक्टेड नहीं है तो रिक्वेस्ट करो चेक 2 से रिक्वेस्ट करना है ना डेटा लाना। ठीक है, तो चेक 2 का ला लो। चेक 1 यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, अगेन ये देखिए, ये लोकल ऑथर बुक्स है और कई बार इनमें मिस्टेक्स होती है। ठीक है, तो पहला वाले का नाम चेक 1 है तो दूसरे का भी चेक 1 नहीं हो सकता, दोनों के नेम अलग होंगे, नाम अलग ही रखने पड़ेंगे कंट्रोल के। तो रिक्वेस्ट करो चेक 2 के डेटा को और फिर एको कर दो। अगर वो सेट है तो उसको एको करो, अगर ये सेट है तो इसे एको करो। बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। नाउ व्हाट आई वांट टू से हियर इज, ये प्रोग्राम में चेक बॉक्सेस यूज एक्चुअली नहीं होने चाहिए। टेल मी व्हाई। चेक बॉक्सेस दोनों चेक कर सकते हैं ना, दोनों भी तो चेक कर सकते हैं। चेक बॉक्सेस में कोई कंडीशन नहीं होती कि अगर एक को चेक किया है तो दूसरे को नहीं चेक कर सकते। तो यहाँ पे अगर यूजर यस और नो दोनों को चेक कर दे तो आप क्या करोगे, डू यू वांट फ्राइज,
तो येस नो दोनों कैसे बोल सकते हो, ठीक है, बट एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू इट्स ओके टू अंडरस्टैंड कि कैसे चेक बॉक्सेस को यूज करना है, ठीक है। तो पहले प्रोग्राम का आउटपुट आएगा एंटरिंग डेटा इनटू चेक बॉक्सेस, लिखा रहेगा डू यू वांट फ्राइज विद दैट, 2 चेक बॉक्सेस रहेंगे, सेंड बटन रहेगी, आप अपनी इच्छा से दोनों में से किसी एक को चेक कर लेना, ठीक है। अब रीडिंग डेटा फ्रॉम चेक बॉक्सेस, यू सिलेक्टेड येस, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ था यू सिलेक्टेड, और फिर जो भी था ये हमने रिक्वेस्ट क्यों, डेटा लाने के लिए। अगर पहला वाला सेट है तो उसको प्रिंट कर दो, सेकेंड वाला सेट है तो उसे प्रिंट कर दो, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ये ब्रेक टैग है जस्ट टू चेंज टू न्यू लाइन, ठीक है। सो यू कैन सी द रिजल्ट इन अबव फिगर वेर यू आर रीडिंग डेटा विथ चेक बॉक्सेस, द यूजर सिलेक्टेड, नोट दैट द यूजर कुड क्लिक बोथ चेक बॉक्सेस हियर, यहाँ पे यूजर दोनों चेक बॉक्सेस को क्लिक कर सकता था, विच वुड मीन दैट दे बोथ वांटेड फ्राइज एंड डिडंट वांट, मतलब उसे फ्राइज चाहिए भी नहीं चाहिए भी। तो ये ऐसी सिचुएशन में एक्चुअली ये कंट्रोल वर्क नहीं करता। ऐसे क्वेश्चंस पे जैसे कि वे डू यू वांट टू गो फॉर अ वेकेशन, तो जब आपसे कोई ऐसे क्वेश्चंस पूछे तो आपके मन में बहुत सारे स्पॉट्स होंगे ना, वहाँ पे लिखा होगा मनाली, शिमला, ऊटी, मसूरी, किसी को फॉरेन टूर पे जाना होगा तो उसने वो भी लिखा होगा मालदीव, स्विट्जरलैंड, तो जो भी है देयर कैन बी मोर चॉइसेस। ऐसे सिचुएशन में चेक बॉक्सेस वर्किंग हो सकते हैं, बट जहाँ पे 2 ही आंसर्स हो सकते हैं, या तो आप येस बोलोगे या तो आप नो बोलोगे, ऐसे सिचुएशन में चेक बॉक्सेस एक्चुअली यूज नहीं होते। और यहाँ पे रोल आता है एक अलग कंट्रोल का जिसे कहते हैं रेडियो बटन। और रेडियो बटन ऐसे कंट्रोल है जिसमें जैसे ही आप किसी एक को सिलेक्ट करते हो ना, दूसरा डिसिलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये आपने यूज किए होंगे डेफिनेटली व्हेन यू आर साइनिंग अप फॉर एनी अकाउंट ऑन जीमेल और फेसबुक, तो वहाँ जेंडर पूछते हैं, तो जेंडर में 2 ऑप्शन, आजकल 3 ऑप्शंस होते हैं जो भी है, बट व्हेन यू सिलेक्ट वन बाकी ऑप्शंस डीसिलेक्ट हो जाते हैं, वो इनएक्टिव हो जाते हैं। तो रेडियो बटन का यही काम है, वो एक बार में एक ही ऑप्शन चूज करने देता है, जबकि चेक बॉक्सेस हमें मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के लिए देता है। सो वेरी सून वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज अ रेडियो बटन एंड हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट। दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज कीप स्टडिंग एंड आस्क मी क्वेश्चंस इफ यू हैव डाउट्स। थैंक यू सो मच।